I want to know, sir, how does one be a good dad? What is something that you feel like you have done right in bringing up your sons that you feel proud of as a dad? When you become a father, there is no book called Daddies for Dummies. ऐसा बुक थोड़ी है, कोई मैनुअल अगर होता तो मैं थोड़ा कुछ सीख लेता, लेकिन हर साल कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है कि now I know how to handle 7-year-old. Then they become 9. Now I know how to handle 9-year-old, then they become 11. फिर मूछ आ जाती है. जब मूछ आ जाती है ना तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं because he is unsure of himself. I know how to handle a 15-year-old, but he's become 21 now. I didn't know how to handle a 21. And then I thought I'll know when my second son is born. But he's a different animal altogether. So you're never prepared how to be a good father. But there are certain things that remain within the family that should be the guardrails of good fatherhood, motherhood, parenthood. And that is, they will do what you do, not what you tell them to do. Wow. Number one, they see action. How you speak to others, they will speak to others. Not always the case. But they know that this is right and this is wrong. And I would rather speak somebody more firmly than my father because my father got cheated by somebody who was being too... Okay, fair enough. The second thing is respect within the parents. I think if you know how to respect your wife and your wife knows how to respect you, you will earn their respect both. If you have to learn to respect each other for them to respect you. And three is, this is the most boring answer I'll ever give you, but it's the most durable answer in the world, and that is, there has to be a lot of love in the family. If there's love, everything gets taken care of. एक पुरानी कहावत भी है अंग्रेजी में, spare the rod and spoil the child. मैं नहीं मानता. I've never raised my hand on my children. If you are good, they'll be good. ये मेरा मानना है. It's not always the case. But मैं आपसे, आप दोनों से इनफैक्ट ये सवाल फर्दर करूंगा. A lot of dads struggle with showing love. आप जैसे बात कर रहे हैं लव की, it's not it is actually one of the most difficult things, especially of fathers of a different generation. In fact, I would say even आज के जो लड़के हैं, आज भी जो अभी fathers बनेंगे, expressiveness and vulnerability हमको दिखाना इतना आसान नहीं होता. As men, you are capable of love. Show it. It's very simple. I ask because आप बहुत open हैं अपनी feelings को लेकर. दिखावा है. सर मुझे जितना दिखता है और जितना भी लगता है आपको देख के, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो. आप इतने, यू आर नॉट लाइक अदर men of your age, I would say. And it is one of the reasons, जैसे आपने मुझे कभी भी आपसे यंगर नहीं फील कराया, आपने आपको कभी ओल्डर फील नहीं कराया, आप हमेशा एक दोस्त फील कराया आपने. एंड आई वुड इमेजिन दैट आप भी शायद अपने बच्चों के साथ भी ऐसी फ्रेंडशिप आपके पास हो. बट मैं वल्नरेबिलिटी की अगर आपसे बात वापस करूं, आप हो पाए हैं अपने बेटों के साथ वल्नरेबल? आपने अपने फेलियर्स, अपने यस बहुत जरूरी है कि वो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका बाप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हीमैन नहीं है. वो हारता भी है, उसकी जिंदगी में भी गड्ढे होते हैं, उससे गलतियां होती हैं और वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है. तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं कई बार हुआ है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ या मुझसे गलती हुई, मैं मेरे परफॉर्मेंसेस का खराब हुए, फिल्म खराब हुई, काम खराब हुआ, जिंदगी में कुछ गलत डिसीजन मैंने लिए, उसका रिपरकशन आज मिल रहा है. तो मैं शेयर करता हूँ कि मुझसे वो गलती हुई, मैंने उस समय ये नहीं करना चाहिए था मुझे. तो ये बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत थैंक यू रीचिंग देयर. सर आपको ये थोड़ा टफ सवाल है और यू मे नॉट नीड टू आंसर इट, बट आप कभी रो पाए अपने बेटों के सामने? आई गेस यस. अगेन, जब मैं छोटा था, लड़कपन के अंदर तो मुझे यही सिखाया गया था, यही सुना था मैंने फिल्मों में भी, रिलेटिव्स के बीच में भी, कि ये लड़की है क्या, लड़की की तरह क्यों रो रहा है. ये कॉन्वर्सेशन कई सैकड़ों बार सुना था. औरतों की तरह रोने लग गया हो तो, अरे उसको मत बताओ, तो लड़कियों की तरह रोता है वो तो मुझे एक स्टेज तक, शायद
16-17 साल की उम्र तक तो मुझे ये था कि रोना होना नहीं चाहिए, जी। मैं छुप कर रोता था। फिर अगेन थिएटर में जाके वहां पे जो दोस्तियां हुई, वहां पहली बार शायद एक ग्रुप था, हम लोग कहीं ऐसे ट्रेन में जा रहे थे और वहां पे कहीं पे मेरे से रोना निकल गया और मैं उस रोने पे शर्मिंदा हुआ। और वहां पर वो जो दोस्त थे लड़के लड़कियां, उन्होंने बोला कि नहीं गज्जू, इट्स ऑल राइट, ऐसा रो सकते हैं, हम्म, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो मुझे तो रोना आता है, मुझे और रो देता हूं मैं। दोस्तों के सामने रोया हूँ, बच्चों के सामने रोया हूँ कि ये गलती हो गई, ये बुरा हुआ। सिनेमा देखते हुए तो रोता ही हूँ। वो तो वो बहुत तो मुझे वो तो obviously, yeah. मैं तो टॉम एंड जेरी में भी रोता क्योंकि रोने का मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका रोना बहुत जरूरी है वो होने के लिए कि हर बार आप इतने इमोशन दिखाओ ऐसा नहीं करने का है। जी। अगर आपको रोना नहीं आता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो छिप के रोने की जरूरत नहीं, क्लोजेट में मत रो, सामने रो। हाँ, it's a very, these are very tested lines, लेकिन बोलना भी जरूरी होता है। Crying is not a display of weakness, it's a display of strength. You're willing to cry in front of your loved ones. बुरी बात क्या है? क्या बुरी बात है? What do you have an incident or an anecdote about when your sons showed you something or said something to you where you felt like यार ये भी they have turned out to be good sons? मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने, बच्चों ने वो एक चीज अख्तियार की है, उसको वो रास्ता पकड़ा है कि जहां पर मुझे लगता है कि हाँ ये एम्पैथी तो है, ये इंसानियत के रास्ते पर हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जानबूझकर। That's beautiful. तो वो मुझे, और अगेन वो ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का किया हुआ है, मेरी बीवी जो है वो इक्वली जिम्मेदार है। किया ही नहीं। हाँ वही तो, इक्वली जिम्मेदार हैं। नहीं मैं इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि वो मुझे सुना देंगी बाद में कि आप तो अपने बारे में बात कर रहे थे। The fatherhood cannot exist without motherhood. I हाँ। think, like, obviously. हाँ। So what do you have to say for this? Any time that you felt like you've raised good sons? They're good boys. Yeah. They have. You should care for your family around you, for your friends, for your team. One small anecdote: my father-in-law loved trains. He just loved trains. He used to take them as children to Udwada railway station, and they used to do train spotting karte the wahan pe. On his first death anniversary, we went to the same spot and waited for a train to pass as a family. And we saw the train spotting, and it was him passing by in the train. It was a very emotional moment for all of us. This was my son's idea. I think we should go and stand over there. We went at that spot. And also, I was in Hungary में थे, शूटिंग कर रहा था। दानिश ने मुझे फ़ोन किया। दानिश my older son, मुझे फ़ोन किया, बोला आप फिलानी जगह पे जाओ, ऐसे जाओ और कायोजी और मैं पैसे भेजेंगे ऐसे, और जाके एक ट्रेन सेट लेके आना। मैं बोला इतना बड़ा ट्रेन सेट कैसे लेके आऊँगा? तो कहाँ भेज दिए थे मुझे, और मतलब मेरा ऑफ डे पूरा गया वो ट्रेन सेट को लाने में। हम लाए और फिर उसका वीडियो बनाया, और वो वीडियो लेके दो लड़कों ने जाके मेरे ससुर जी के गोद में रखा, और ही वाज लुकिंग एट देम, क्योंकि उनका फेवरेट जर्मन ट्रेन सेट था, मार्कलिन करके। एक बोगी बहुत महंगी होती है, और फिर उन्होंने टेबल पे सेटअप किया, और मेरे जो ससुर जी है बैठ के ऐसे देख रहे, और वो ट्रेन को ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे बच्चे की तरह। और मेरे दो बच्चे उनका चेहरा देख के मतलब इतना खुश हो रहे थे कि यू कैन ब्रिंग जॉय टू पीपल विद द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। वो देख रहा, और ट्रेन देख रहा था, ऐसे देख रहा है। 2 days later he passed away. Now what I'm trying to say is acts of kindness are what you must aim in every day of your life. Small acts of kindness. ये तो बहुत, but with anyone, figure out a way that you bring some joy into someone's life, and that is what I feel we should spread. Not to say यार ये तो ऐसे करेगा, ये सीखेगा, वो करेगा, इतना पैसा कमाएगा, वो तो हो ही जाएगा। अकल है, ऊपर वाले ने एजुकेशन दिया है, you have got enough, we'll end up being financially in a good place, we'll travel, वो तो सब करना ही है लाइफ। But to bring small acts of joy is what I
आई एम अ सॉफ्ट पर्सन इन दैट सेंस. मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, रोता भी बहुत हूँ. अभी नहीं, मजाक कर रहा हूँ. रोता भी बहुत हूँ, लेकिन लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड इमोशनैलिटी इन गिविंग. I feel that they have that quality. I really do. That's wonderful, sir. I think. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.